A very good morning in Jai Hind class 11th. Welcome to the online classes of business studies. It is one of your main subject. First of all, I would like to congratulate all of you that you all are promoted to class 11th from class 10th. Though it is a very tough time for all of us, as well as your board examination suffered due to this COVID-19. I can understand the situation. You all know the situation very well, but we have to strengthen ourselves. We have to cope up with the situation. Whatever the situation is, we need to buck up and we need to take care that our studies will not suffer. Right? Okay. So let me first acquainted you with your new subject, that is business studies. Dear all, it is my humble request to kindly install the Zoom app, as once in a week we will have the interaction through the Zoom classes, which is very good. Alright, so come to the point that let me first acquainted you with your subject business studies. Alright, if we are talking about this subject, it is very important for me to know why you all have opted this stream, that is commerce. So सारे बच्चे मुझे बताएंगे, it is your homework for tomorrow, that why you opt commerce as a mainstream. Okay? अब आपने commerce ले लिया है, तो commerce में आप business के बारे में पढ़ोगे, and this is what you'll study in this subject, that is business studies. ओके अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, अबाउट द सिचुएशन गोइंग अराउंड. सी लेट्स सपोज अगर हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, इट इज़ योर सब्जेक्ट, तो हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, दैट इज़ कोविड-19. इन दिस सिचुएशन ऑल द बिजनेसेस आर गोइंग वर्स. सी अब सिर्फ उनका बिजनेस चल रहा है, दोज हु आर हैविंग ग्रॉसरी शॉप्स, दोज हु आर हैविंग मेडिकल स्टोर्स. दो अब इन दिस सिचुएशन ऑफ अनलॉक सब कुछ रनिंग में है, बट एक सिचुएशन ऐसी भी थी जहाँ पर सारे बिजनेसेस ठप हो गए थे. यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं आपकी ऑनलाइन आपकी क्लासेस की, आपके इंटरेक्टिव क्लासेस की, तो इट वॉज नॉट देयर. सो दिस इज़ वॉट यू ऑल, मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ ऑल यू लर्न अबाउट in this subject, that is business studies. So let us first talk about the syllabus. Okay, the book I recommend you all is T.N. Chhabra. So it's better you purchase T.N. Chhabra as soon as possible. All right. Okay, so let's discuss the syllabus first. Here I do have the book of business studies class 11th. Okay, this is T.N. Chhabra. I recommend this book as the contents and the concepts are very clear in this. Alright, and when we are talking about the syllabus, so just have a look here in the book. The book is divided into two parts, part A and part B. Part A is all about foundations of business. Business की foundation के बारे में, फाउंडेशन के बारे में कैसे इवेल्युएट हुआ बिजनेस, उस व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या हैं, इवोल्यूशन हुआ कैसे, क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से डेवलप हुआ बिजनेस, उसके क्या क्या फंडामेंटल्स हैं. दिस इज़ व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर. देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ योर सेकेंड चैप्टर. देन पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज. वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज. ऑल राइट. Your fourth chapter is business services. Your fifth chapter is emerging modes of business. Sixth chapter in part A is social responsibility of business and business ethics. Okay? So, in part A we have total 6 chapters. All right. Now comes part B. Part B is all about finance and trade. What is in this? Your 7th chapter, which is about sources of business finance. अभी बोलने में सब समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है इन चैप्टर्स में, बट दिस इज़ व्हाट यू विल लर्न
you will study about. Chapter number 8 is about small business enterprises. Chapter 9 is internal trade. Chapter 10 is international trade, right? So there are total 10 chapters. Then we have the project work, which is excluded from the chapters. All right, so in sum total there are 2 parts in your book, part A and part B. Part A consists of 6 chapters and part B is having 4 chapters. So there are total 10 chapters in your book. Marking is also given here. Okay, I'll send a capture of the syllabus in the group. All right, so we will be starting with the very first part, that is part A. Foundations of Business is the very first chapter. Okay, your very first chapter is Evolution and Fundamentals of Business. Beta, please don't get confused. Part A, once again I'm telling you, part A, that is all about foundation of business. Business की foundation कैसी रखी गई. In this, your very first chapter is evolution and fundamentals of business, right? So let's have a look here in the notebook. Dear students, let me tell you that you all are supposed to prepare a notebook of business studies, a kind of register like this, and you all are supposed to prepare notes as like me. All right, like I prepare the notes. In this way, you all are supposed to prepare your notes. I hope you all are very much acquainted with how to prepare notes. All right. So, as we are starting today, chapter number 1, that is Evolution and Fundamental of Business. So, it is very important for all of us to know about the history of commerce in India. Commerce, trade, commerce, व्यापार, right? भारत में हम ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले. Okay, so in this chapter, our very first topic is about history of commerce in India. अब आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए that what is the history of commerce in India, right? If we are talking about this, so let me first tell you, ancient times में क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था. ओके, हमारा जो ट्रेड और कॉमर्स था दैट वाज सपोर्टेड बाय वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन. बहुत अच्छा ट्रेड और कॉमर्स था अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिनका काम होता है टू फाइंड आउट द एविडेंसेस, दे फाइंड आउट द एविडेंसेस, जिन एविडेंसेस से वी गेट टू नो अबाउट द कॉमर्शियल सिटीज़. कॉमर्शियल मीन्स, कॉमर्शियल इज़ अबाउट व्यापार. जिन शहरों से व्यापार होता था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, आर्कियोलॉजिस्ट ने रिवील किया अबाउट दोज पर्टिकुलर सिटीज़, जैसे हड़प्पा या हम मोहनजोदारो की बात करते हैं. दे वर एक्चुअली फाउंड इन द 3rd मिलियन BC. ये सिटीज़, हड़प्पा के बारे में आप सबने SST में पढ़ा है और अबाउट मोहनजोदारो ऑल्सो. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस देखे वहाँ पर, जिससे पता लगता था कि वो उनका ट्रेड और कॉमर्स वाज वेरी गुड. ओके, वो किस में ट्रेड करते थे? दे वर ट्रेडिंग इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स, पर्ल्स, बीड्स, सीशेल्स. इन सब चीज़ों में ट्रेड करते थे वो लोग, व्यापार करते थे, लेन देन करते थे इन चीज़ों का. एंड yes, these cities had trade with other countries also. ऐसा नहीं था ये अपनी ही सिटीज़ में ट्रेड करते थे. अपनी ही सिटीज़ में अगर ट्रेड करेंगे तो इतना बेनिफिट नहीं होता. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द एंशिएंट सिटीज़. तो वहाँ पर क्या होता था, दे ऑल्सो यूज टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ ऑल्सो. मतलब अब की बात हो रही है 3rd मिलियन BC की. ऑल राइट, हम बात कर रहे हैं हड़प्पास और मोहनजोदारोस की. ओके, इंडिया हैड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स. अगर हम बात करते हैं सिल्क रूट, आप लोगों ने सिल्क रूट पढ़ा होगा, ठीक है. इंडिया का बहुत अच्छा नेटवर्क था रोड्स के लिए, मर्ज होता था सिल्क रूट में, विच वॉज फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग विद द एडजॉइनिंग किंगडम्स एंड एम्पायर्स ऑफ एशिया. इस चीज़ को समझो बेटा.
जो भारत का नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था. अगर उन्हें व्यापार करना था, ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटीज़ में देवर इन्वॉल्व, तो दे हैव टू फाइंड आउट सम रूट्स जिससे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड कर सकें. ठीक है, ऐसे ही फाइंड आउट किया गया एक रूट विच वॉज नोन एज सिल्क रूट, जहाँ से सिल्क को ले जाया जाता था. ओके ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. द मैरीटाइम रूट्स लिंक्ड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय सी. समुद्र के द्वारा बहुत सारा कॉमर्स और ट्रेड की एक्टिविटीज़ की जाती थी. सी ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था फॉर ट्रेडिंग इन स्पाइसेस. सी ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग इन स्पाइसेस और इसीलिए उसका नाम रखा गया स्पाइस रूट as like silk route. Okay, trade centers and industrial belts developed along these routes with further facilitated both domestic and international trade. Trade centers और industries आगे आगे develop हुई इन routes के साथ. ये routes भी develop हुए और जो people थे they get involved with the domestic as well as international trade. अच्छा, अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं सिविलाइजेशन की, तो आपने पढ़ा होगा दैट देयर वर नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. राइट, होता क्या था? बार्टर सिस्टम. यू मस्ट हैव रेड बार्टर सिस्टम इन क्लास 9th इन इकोनॉमिक्स, क्लास 10th इन इकोनॉमिक्स. बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, आई रिपीट, अंडर द बार्टर सिस्टम. गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था, which require double coincidence of needs. but एक problem होने लगी उसमें. like suppose I can give let's take an example of barter system कि there is a farmer. Farmer have surplus wheat but he require a pair of shoe. The shoemaker require wheat. Farmer has surplus wheat, right? so यहाँ पर उन दोनों की जो want हैं, the want are absolute here. Farmer needs shoes and the shoemaker need wheat. Okay, but double coincidence of need क्या होता है? कई बार ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि फार्मर को शू की रिक्वायरमेंट नहीं है और शू मेकर को वीट की ही रिक्वायरमेंट है. ठीक है, बट फार्मर इज लुकिंग आफ्टर फॉर सम अदर थिंग, लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, राइट? फार्मर नीड राइस. ओके, उसको अपने वीट के बदले में राइस की ज़रूरत है, तो उसे किसी ऐसे बायर को ढूंढना है जो राइस सेल करने में इंटरेस्टेड हो. किसके बदले में? वीट के बदले में. ओके, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है. फार्मर विथ सरप्लस वीट रिक्वायर क्लोथ मस्ट फाइंड अ वीवर फॉर विथ सरप्लस क्लोथ एंड रिक्वायरिंग वीट. एक फार्मर जिसके पास सरप्लस वीट है, उसको कपड़ों की ज़रूरत है, तो उसको ऐसा वीवर सर्च करना है जिसके पास सरप्लस क्लोथ हो और उसको वीट की भी ज़रूरत हो, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. ज़रूरी नहीं है फार्मर इज़ लुकिंग फॉर अ वीवर, ज़रूरी नहीं है कि वीवर को भी सरप्लस वीट की रिक्वायरमेंट हो, आई मीन वीट की रिक्वायरमेंट हो, एज द फार्मर इज़ कैरिंग सरप्लस वीट अलॉन्ग विद हिम. ऑल राइट. अच्छा, अब ये डबल कोइंसिडेंस वांट होने लगा. मुझे let's suppose I need shoes और मेरे पास I am a weaver. ठीक है, I do have fabric और मुझे उसके बदले में शूज़ चाहिए. मैं शू मेकर के पास गई, मैंने शू मेकर को बोला कि I need shoes, आप इसके बदले में what do you want. ज़रूरी नहीं है कि शू मेकर को उसके बदले में क्लोथ की रिक्वायरमेंट हो. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या अराइज हुआ? डबल कोइंसिडेंस ऑफ want, need. ओके, एंड दिस लेड टू यूज़ ऑफ प्रीशियस मेटल. इस वजह से प्रीशियस मेटल्स का इन्वेंशन हुआ और बाद में मेटेलिक मनी आई, जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, राइट? पहले प्रीशियस मेटल्स यूज़ किए जाते थे, मतलब करेंसी माना जाता था उसको. देन कम्स गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट? लेन देन करने के लिए उसके बाद गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया. मेटेलिक करेंसी ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग्स वॉज वेरी ड्यूरेबल. तब उस टाइम राजा महाराजाओं ने मेटेलिक करेंसी निकाली थी और दैट वॉज वेरी ड्यूरेबल और एक्सेप्ट की जाती थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इससे अराइज हुआ दैट लेड टू राइज ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. मेक इट अ पॉइंट, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम.
All right, which is what we'll discuss here in this topic. So let's have a recap about history of commerce in India. India had well developed civilization, right? India had a good network of road merging into the Silk Route. Okay, goods were exchanged for goods under the barter system, which actually required double coincidence of need of the parties to the exchange. And then it led to the rise of indigenous banking system. ये हमें समझ में आ गए तीनों पॉइंट्स. व्हाट इज़ दिस इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम अबाउट? जब बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज उसमें डबल कोइंसिडेंस और वांट आ जाता था. दोनों को वही चीज़ का वांट होनी, नीड होनी बहुत ज़रूरी है जो एक दूसरे के पास है, नहीं तो उन्हें किसी और को ढूंढना पड़ेगा, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. तो उसके बाद मेटेलिक करेंसी यूज़ की गई. उसके बाद गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स आए, किंग्स ने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इससे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम राइज किया. And what is indigenous banking system? Have a look here. An indigenous banker is defined as an individual or a private firm which receives deposits. लोगों के पैसे को या लोगों के कोलेट्रल को, कोलेट्रल पढ़ा आप लोगों ने 10th में, लोगों के पास जो चीज़ होती है, लाइक सपोज मेटेलिक करेंसी होती थी उस टाइम पर, गोल्ड कॉइन होते थे, सिल्वर कॉइन होते थे, उन्हें डिपॉजिट करते हैं अपने पास. डील्स इन यूंडीज़, रिकॉर्ड्स रखते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं किसने किस टाइम पर पैसा लिया और कितने टाइम पर उसको रिटर्न करना है, कितने इंटरेस्ट पर उसने पैसा लिया. डील्स इन यूंडीज़ और एंगेज इटसेल्फ इन लेंडिंग मनी, और लोगों को पैसा देना, लेंड मनी, मनी को लेंड करना. ओके, लोगों को उधार में पैसा देना, करेंसी देना, जो भी उस टाइम पे चलता था. ठीक है, दिस लेड टू अराइज इन rise of indigenous banking system, जिसका काम होता था रिसीव डिपॉजिट्स, डील्स इन यूंडीज़. अब आगे आप पढ़ोगे आज किस चीज़ से डील करते हैं. आज तो आप चेक देखते हो, चेक पे लिखा होता है किसी ने अमाउंट भर दिया है, आप जाओ चेक डालो और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है. बट उस टाइम तो ऐसा सब कुछ नहीं था, तो वो लोग यूंडीज़ में डील करते थे. दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ नोट जिस पर रिटर्न होता था किसने कितना पैसा लिया और कितने इंटरेस्ट पर पैसा लिया है. ओके, एंड दे एंगेज इटसेल्फ इन लेंडिंग मनी, और लोगों को उधार में पैसा देना. राइट, सो लेट्स कम टू द बुक अगेन विद द पॉइंट इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. ओके, इंडिजीनियस बैंकर कॉन्स्टिट्यूट द एंशिएंट बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया. बेटा अगर हम बात कर रहे हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया. पहले टाइम के, प्राचीन काल के बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं. दे हैव बीन कैरिंग ऑन देयर एज ओल्ड बैंकिंग ऑपरेशंस. अपने तरीक़ों से काम किया जाता था उस टाइम पर. ठीक है, हर कंट्री में अलग अलग नाम से ये काम किया जाता था. जैसे इन चेन्नई, अगर हम चेन्नई में बात करें तो उन बैंकर्स को कहते थे चेटीज़. नदर्न इंडिया में देवर साहूकार्स, महाजन्स एंड खटनीज. In Mumbai, they were Shroffs and Marwaris, and in Bengal, they were Seths and Baniyas, and they are also known as Seth at some places only. Right? अगर हम बैंकर की बात करते हैं, आज तो अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है, अपनी मनी डिपॉजिट करनी है, मनी बोरो करना है, लेंड करना है, आप डायरेक्टली बैंक में जाओगे और वहाँ पर एक यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सिस्टम. बट पहले ऐसा नहीं होता था, कोई बैंक ऐसे नहीं होते थे. दे वर नोन एज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, वो डिफरेंट कंट्री में अलग अलग नाम से लोग जाने जाते थे. चेन्नई में जो बैंकर्स होते थे जिनके पास पैसा होता था, लोगों से पैसा डिपॉजिट करते थे, लोगों का यूंडीज़ क्रिएट करते थे, रिकॉर्ड करते थे और लेंड करते थे मनी. दे वर नोन एज चेटीज़. ऐसे ही नदर्न इंडिया में दे वर नोन एज साहूकार्स, महाजन एंड खटनीज. इन मुंबई दे वर नोन एज श्रॉफ्स एंड मारवाड़ीज. इन बंगाल by the name of Seth and Baniyas. All right. So according to Indian Central Banking Inquiry Committee, just I have told you that an indigenous banker is who receive deposits, deals in undies और engage itself in lending money. लोगों को पैसा देना, लोगों से डिपॉजिट्स को रिसीव करना.
ठीक है, ऑलराइट। जो पैसा उन्होंने बोरो किया है वो वापस देते हैं वो, या उनके पास कुछ कोलेट्रल है वो उसके बदले में पैसा लेते हैं, राइट। सो एज पर दिस डेफिनेशन इंडिजीनियस बैंकर कुड बी एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म। कोई एक इंडिविजुअल, कोई सेठ भी हो सकता है इंडिविजुअल इंडिजीनियस बैंकर, और कोई एक प्राइवेट फर्म भी हो सकती है इंडिजीनियस बैंकर। ओके, लेंडिंग मनी, लोगों को उधार में पैसा देना, एंड डीलिंग इन यूंडीज। ओके, अभी मैंने जस्ट हैव टोल्ड यू कि इसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड, किसने कितना पैसा लिया और कितने समय में लौटाएगा। एक नोट उन्हें इशू कर दिया जाता था। ऑलराइट, अर्ली स्टेजेस में अगर हम पहले की बात करते हैं तो जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते थे, दे क्या एक्सेप्ट करते थे, मेटेलिक कॉइन्स, क्योंकि उस टाइम पे होते यही थे। They accept metallic coins as deposits and lend for both domestic और international trade। देखो, एक सिर्फ भारत में ट्रेड नहीं किया जाता था, भारत के बाहर भी भारत के लोग ट्रेड करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस टाइम पर भी, ठीक है। और व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट टाइम मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज, आज की करेंसी तो थी नहीं, 2000 का नोट, 1000 का, 500 का नोट नहीं था, सॉरी 1000 का तो अब भी नहीं है, 500 का नोट, 2000 का नोट नहीं था। दैट टाइम व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट वाज मेटेलिक कॉइन्स। तो उन्हें डिपॉजिट करते थे, जिनके पास मेटेलिक कॉइन्स होते थे वो अपने मेटेलिक कॉइन्स उनके पास डिपॉजिट करते थे, किनके पास, इंडिजीनियस बैंकर्स के पास, उसके बदले में पैसा ले लेते थे फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते थे जैसे यूंडई, चिट्ठी, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन चीज़ों का यूज़ होता था, यूंडई और चिट्ठी का, मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट यूंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज वॉज मच मोर प्रोमिनियंट, बट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वॉज यूंडई। ओके, जिसमें क्लियर होता था इसने हमसे इतने पैसे लिए हैं फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, ओके, सो वी today have discussed about the history of commerce in India and the indigenous banking system, which I think is just not sufficient for today, but let's again have a recap of this. History of कॉमर्स इन इंडिया में हमने पढ़ा कि इंडिया का बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, अच्छा ट्रेड था, कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स था। आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हड़प्पा और मोहनजोदारो से, जिसमें ये शो किया गया कि वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, अलग अलग चीज़ों के साथ, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ व्यापार करते थे, कॉपर, कलर्ड जेम स्टोन्स, पर्ल्स, बीड्स, सी शेल्स के साथ, ठीक है। इंडिया का नेटवर्क भी अच्छा था, रूट, चाहे वो सी रूट हो चाहे लैंड रूट हो, स्पाइसेस के लिए स्पाइस रूट फॉर्म क्रिएट किया गया, सिल्क रूट के साथ मर्जिंग कर दी गई नेटवर्क को अच्छा बनाने के लिए। अब जब ट्रेड होता था पहले टाइम पर भी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होगा। दैट टाइम द सिस्टम वॉज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी कोइंसिडेंस ऑफ नीड ऑफ वांट की, ज़रूरी नहीं है मुझे वीट चाहिए और दूसरे को शूज़ चाहिए। उससे क्रिएट हुआ, राइज हुआ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते थे, उस टाइम पर भी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते थे, बट उनका काम होता था डिपॉजिट रिसीव करना। डिपॉजिट के क्या रिसीव करते थे, लेट्स सपोज आप मेरे पास आओगे, यू केम टू मी कि मैम आई वांट टू लेंड सम मनी, आई वांट टू बोरो सम मनी, तो मैं ऐसे ही थोड़ा ना पैसे दे दूँगी आपको। आप बोलोगे कि आई डेफिनेटली आस्क यू, डू यू हैव समथिंग टू डिपॉजिट, सबमिट, राइट, डू यू हैव एनी कोलेट्रल जिसके बदले में आपको पैसा दे सकूँ, राइट। सो अनदर पार्टी मस्ट हैव सम कोलेट्रल, मस्ट हैव समथिंग जिसके बदले में वो पैसा दे दे, क्योंकि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं हो सकता है किसी को। ओके, तो यहाँ पर इनका काम होता था डिपॉजिट्स रिसीव करना, मनी को लेंड करना, मनी जो बोरो करने आते थे उन्हें पैसा देना, एंड डीलिंग इन इंडियज, ऑब्वियसली रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कौन पैसा लेके जा रहा है, कितना पैसा लेके जा रहा है और कितने टाइम के लिए पैसे लेके जा रहा है। ऑलराइट, इसमें हमने पढ़ा उन बैंकर्स को अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम दिए गए। चेन्नई में कहा गया चेटीज़, नॉर्थ इंडिया में साहूकार्स, महाजन और खटनीज़, मुंबई में श्रॉफ और मारवाड़ीज़,
and in Bengal they were Seth and Baniyas. All right. Okay. So now another topic is operations of indigenous bankers. इंडिजीनियस बैंकर्स का काम होता क्या था, वो लोग क्या काम करते थे. अभी हमने समझ लिया कि वो लोग डिपॉजिट रिसीव करते थे, उसके बदले में पैसा देते थे और रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, डील्स विद यूनिडीज. ओके, सो we will discuss the operations of indigenous bankers now. So the very first thing is they were classified under 4 main subgroups. Gujarati shroffs, right? बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं इंडिजीनियस बैंकर्स की, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज. इंडिजीनियस बैंकर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था, बट उनकी मेन कैटेगरी थी, मेन सब ग्रुप जो था वो था गुजराती श्रॉफ्स का, शिकारपुरी और मुल्तानी श्रॉफ्स. उस टाइम पर यही नाम दिए जाते थे. इंडिजीनियस बैंकर्स को वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए. द वेरी फर्स्ट वन इज़ गुजराती श्रॉफ्स, then comes Shikarpuri or Multani shroffs, then Chettiars of the south and Marwaris, Kayas of Assam. Okay, these were the 4 indigenous bankers. The Gujarati shroffs were active in the industrial and trading center of Gujarat, Bombay, right, and Calcutta, and they were joined by the मारवाड़ी श्रॉफ्स इन बॉम्बे एंड कलकत्ता. क्योंकि ये गुजराती श्रॉफ जो थे, ये गुजराती श्रॉफ डील करते थे, जो ट्रेड करते थे वो बॉम्बे कलकत्ता के साथ करते थे, और मारवाड़ी कायास के साथ इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि दे ऑल्सो दे ऑल्सो वर एंगेज इन द ट्रेड विद बॉम्बे एंड कलकत्ता. ओके, अगर हम बात करते हैं द शिकारपुरीज और मुल्तानी श्रॉफ्स की, दे ऑपरेटेड मेनली इन दी मेट्रोपॉलियन एरियाज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास और बॉम्बे के मेट्रोपॉलियन एरियाज में डील करते थे, राइट. एंड एल्सवेयर इन दी साउथ वेयर द चेटियार्स वर ऑल्सो एक्टिव, और साउथ में भी करते थे जहाँ पर चेटियार्स वर ऑल्सो एक्टिव. ओके, मतलब हर जगह दे ऑल वर एंगेज समहाउ. The Marwaris operated in the tea garden of Assam. The Marwaris operated in the tea garden. Assam is very famous for tea garden. And other part of Northeast India. Northeast India के और parts में as well as tea garden of Assam के साथ trade करते थे. All right. Okay. Just don't get confused with that. Try to purchase book as soon as possible. And up to here, just revise what we have discussed today. I think that's all for today, right? इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो शायद ये आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप सबके लिए. So it is my request to all of you, all 4 of you, the very first thing you all are supposed to do is you need to send me your names personal on my personal number, personal WhatsApp number. All right. If you are having any kind of problem, you just feel free to call me anytime. Okay, and do not forget to prepare your notes. Purchase a notebook, purchase a register, start preparing your notes. Whatever the important points you're finding out, just copy it in your notebook. Any of the day I can ask for the notes. All right, and your today homework is, the very first one is why you 4 have opted the commerce as the mainstream, and the second homework is you need to read this chapter up to here. All right, and tomorrow we will be continuing with this same topic. This topic is still incomplete. So tomorrow we will be continuing with this same topic. All right. Take very good care of yourself. Keep in touch with studies regularly. Okay. And once again I'm telling you, if you are facing any kind of problem with the subject, you can call me on my number, or you can WhatsApp me. I'll be there to help you out.
but need a proper cooperation from all of you. Have a good learning. Thank you so much.